Mevat, and right now I'm doing job as junior accountant, and I have done graduation from NIT Kurukshetra. So NIT Kurukshetra in which branch? Electrical engineering. Electrical engineering. Okay. So why do you want to join this civil services, Haryana Civil Services? क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? सर राइट नाउ सर अभी मैं ग्रुप सी एम्प्लॉय हूँ इन चेन्नई. सर इफ आई ज्वाइन द सर्विस देन आई विल गेट ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. तो सर मेरा भी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा होगा. एंड सर अगेन सर इट विल प्रोवाइड मी मतलब गैमेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. तो सर मैं लोगों के लिए भी कुछ कर सकूँ सर, वेलफेयर ऑफ द पीपल. सो वेलफेयर तो आप एज ए इंजीनियर भी कर सकते थे. सर एक्चुअली मैंने अप्लाई भी किया था इंजीनियरिंग के टाइम में, बट सर आई कुड नॉट गेट द रिक्रूटमेंट देयर इन NIT Kurukshetra. देन सर आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर UPSC सर फ्रॉम Delhi. I took coaching sir, then I gave this exam HPSC and now I'm here sir. So have you appeared for IES? Yes sir, I have applied. Electrical engineering? No sir, not IES sir. AS only sir. I have applied for UPSC AIES only. So you have not just mentioned about the hobbies and interest areas. Yes. So in this, so what are your interest areas and hobbies? Sir, interest area means I don't know the Hobbies? What are your hobbies? Hobbies. Sir, I actually like watching cricket. Okay. That's all. So you are playing or not? Only watching. Right now I am only watching it. And only one hobby is there? Yes sir. Nothing else? Nothing. So one thing I just want to ask that right now there is a problem. The jurisdiction given by this Supreme Court related to Ayodhya. Yes. So what do you think about this Ayodhya issue? So whether jurisdiction has satisfied the sentiments of और जो लोगों की भावनाएं हैं उनको सेटिस्फाइड किया है या नहीं किया है उसने? सर अभी रिसेंट रिमार्क्स जो आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग सर कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज हैं सर, दे आर सेइंग कि दे अपील अगेंस्ट द जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट. बट राइट नाउ दे आर एनालाइजिंग द होल द प्रोस्पेक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सर. बट हिंदू कम्युनिटीज आर नॉट मतलब दे आर respecting the judgment of Supreme Court. All are respecting the judgment of Supreme Court. But so, there are some people who are going for the appeal, sir. Hello. You are from Mewat? Yes, sir. No? Yes. So you are from Mewat, and Mewat population is basically there is majority of population is Muslim. Muslim, sir. So what do you think this? What is the opinion of Mewat people regarding this Ayodhya issue? अयोध्या इशू में मेवात के लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या विचार है? सर एक्चुअली सर गवर्नमेंट ने इन मेवात डिस्ट्रिक्ट इंटरनेट सर बंद कर दिया है 3 दिन के लिए सर प्रोबेबली. सो गवर्नमेंट इज मतलब सोच रही है कि शायद कुछ वायलेंस वगैरह होने के चांसेस है वहाँ पे. बट सर एक्चुअली अभी ग्राउंड लेवल पे पता नहीं कि वहाँ के लोगों की क्या फीलिंग्स है, सेंटिमेंट्स अभी पता नहीं है सर मेरे को. आप वहाँ नहीं थे अभी चेन्नई? सर अभी मैं चेन्नई से दिल्ली आया था सर, फिर देन आई केम हियर. आपने कुछ एक थोड़ा सा बिहेवियर अजीब सा था आपके स्टाफ में. सो यू हैव चूजन 2 डायमेट्रिकली अपोजिट सब्जेक्ट्स. वन इज मैथमेटिक्स, अदर इज हिस्ट्री. सो एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, सो इन मेवात डिस्ट्रिक्ट देयर इज ए दिस मेवाती घराना. सो देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ मेवाती घराना. सो व्हाट इज दिस मेवाती घराना? सर I'm not sure about this, but sir, can I guess, sir? Sir, Mewati Gharaना is probably musical tradition और I think from sir वो घराने होते थे जहाँ पे डांस और I think music, perhaps sir, I am not able to recall. What is घराना? How do you explain घराना? घराना क्या होता है? सर घराना बेसिकली कुछ लोग जो वहाँ पे जो मैं मतलब जो मेन उसके जैसे कोई म्यूजिकल में अगर मेन जो एक्सपोनेंट वगैरह यूज़ करते हैं सर, तो उनका उसमें काफ़ी एक्सपर्टाइज होती है सर उनको. Is it a school of music or it is something different? सर स्कूल ऑफ म्यूज़िक. क्या स्कूल ऑफ म्यूजिक? मतलब सर जो भी पर्टिकुलर म्यूज़िक होता है तो उसमें उनकी सर एक्सपर्टीज होती है सर.
You don't have much. Not the money. What are the main economic activities in your particular place to which you belong, Mewat? Sir, in that agriculture is the main occupation in Mewat, sir. 80 to 90% people are engaged in agriculture there. And sir, there are no industrial development industries in Mewat, sir. That's why it is backward district in the Haryana, sir. Haryana is known for the economic powerful state, but sir, Mewat is very least developed in terms of agriculture. Even in agriculture, there is not ज़्यादा development नहीं है सर वहाँ पे, and industries बिल्कुल भी नहीं है सर मेवात में. So sir, it is regarded as most backward district in Haryana. If I ask you to give me some suggestions Yes, sir. for the improvement of the agriculturist, and government is also thinking of doubling their income Yes, sir. in this thing, there is a roadmap. मेरे को कुछ दे सकते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, बिकॉज यू बिलोंग टू एग्रीकल्चर स्टेट प्रेडोमिनेटली. सर एक्चुअली अभी एग्रीकल्चर में सर काफ़ी क्या आप सोचते हो कहाँ का एरिया में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए एग्रीकल्चर डिप्लोरेबल हो, बताइए. सर एग्रीकल्चर में सर काफ़ी डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी सर हुआ है सर. तो हम जैसे मेवात की सोइल है सर, वहाँ पे काफ़ी क्रॉप्स हो नहीं पाती सर. बट अगर सर सोइल रेजिस्टेंस जो क्या कहते हैं, जो सोइल वहाँ की इतनी वो नहीं है कि कुछ क्रॉप्स हो पाए, तो आजकल टेक्नोलॉजी के बेसिस पे सर ऐसी क्रॉप या सीड बनाए गए हैं जो सर उस सोइल कंडीशन में भी मतलब हो सकती है सर, ग्रो कर सकती हैं. तो सर वहाँ पे अगर ऐसी क्रॉप्स बोई जाएँ सर जो वो सोइल परहैप्स उसमें हो सके, तो सर मैं सजेस्ट करूँगा कि वो हो. और सर ऑर्गेनिक फार्मिंग सर, क्योंकि हमें हरियाणा में से एज अ होल सर फर्टिलाइजर्स का यूज़ सर ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. तो सर उससे डिसीज़ वगैरह सर मतलब कैंसर इशूज़ लाइक फर्टिलाइजर की ज़्यादा इशूज़ है, कैंसर वगैरह सर लोगों में काफ़ी है. तो सर मैं चाहूँगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाए वहाँ पे बाई गवर्नमेंट. एंड सर मैं भी वहाँ पे पंचायत या आंगनवाड़ी वर्कर्स या सर गवर्नमेंट लेवल पे जाके नुक्कड़ नाटक इवन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप सर उन लोगों को मोटिवेट करूँगा जाके खुद की, जिससे कि सर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आएँ सर. एंड सर इरीगेशन सर, मेवात में सर इरीगेशन बहुत ही कम है सर. वहाँ पे 41% एरिया मेवात सर वहाँ पे इरीगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है. बट एज अ होल हरियाणा में सर 80% इरीगेशन है सर. तो मैं गवर्नमेंट स्कीम से इंटरवेंशन जैसे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है सर, उसके तहत सर मैं गवर्नमेंट को भी बोलूँगा और वहाँ की जो लोकल बॉडीज़ हैं उनसे ही बोलूँगा कि सर वो अपनी आवाज़ उठाएं और अवेयरनेस वगैरह इंक्रीज हो सर रिगार्डिंग गवर्नमेंट स्कीम विच हैव बीन इन हरियाणा. व्हाट इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग? जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह सुना है? यस सर, कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सर जो क्या कहते हैं, जो भी कोई कॉर्पोरेट सेक्टर होता है वो सर कुछ फार्मर्स से डिस्कस करता है कि उनको वो क्रॉप उनको हर साल सर कोई उनका वो होता है कि कॉन्ट्रैक्ट टाइप होता है सर, उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनको क्रॉप वो सप्लाई करनी पड़ती है कॉर्पोरेट सेक्टर को सर. तो सर उससे कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा होता है, उनको भी सप्लाई मतलब राइट टाइम में मिल जाती है. फार्मर्स की सर जो क्रॉप होती है वो भी सेल हो जाती है. आपका एनकरेज कर रहा है गवर्नमेंट? हरियाणा गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग दिस? सर आई एम नॉट. So, what model can be considered for suitable for agriculture as a whole India? So that they may be organic farming, cooperative farming, contract farming, the subsistence farming. So which model Precision suits farming. India? There is Precision another farming. So which model according to you? आपके हिसाब से कौन सा मॉडल परफेक्ट है? सर ऑर्गेनिक फार्मिंग सर ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा सर, क्योंकि सर ये जो हम मतलब फर्टिलाइजर वगैरह का फोकस किया हुआ है सर हमने. तो सर ऑर्गेनिक फार्मिंग लॉन्ग वे में चलेगा सर, ये काफ़ी सोइल वगैरह सस्टेन भी रहेगी. एंड सर ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो वाटर सप्लाई भी कम जरूरत पड़ती है क्रॉप्स को, तो सर वो वाटर प्रॉब्लम सर हरियाणा में हमारे मेवात में भी सर ड्रिंकिंग वाटर का लेवल सर वो भी काफ़ी नीचे जा रहा है. तो सर उससे वहाँ भी फ़ायदा होगा. और सर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सर गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम्स लॉन्च करी हैं, जिसमें सर ऑर्गेनिक ट्रेडेड जो फूड होते हैं उनकी सर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, उनको ज़्यादा रेमुनेशन मिलता है रेदर देन नॉर्मल क्रॉप्स. तो सर वो भी फार्मर्स की इनकम भी उससे इंक्रीज होगी. तो सर आई थिंक कि फर्टिलाइजर
फर्टिलाइजर आप कई बार बोल चुके हैं, फर्टिलाइजर ऐसा क्या इशू हो रहा है फर्टिलाइजर से? सर एक्चुअली फर्टिलाइजर इज बिकम अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर सर एक्चुअली एक स्टैंडर्ड वे होता है सर फर्टिलाइजर्स में, जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, एनपीके सर, इसकी जो कंट्रीब्यूशन होती है वो 4:2:1 के रेशो में स्टैंडर्ड सर माना गया है। बट सर फार्मर्स वगैरह सर दे उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है इसके रिगार्डिंग, तो सर वो नाइट्रोजन को या तो 8 टाइम्स दे देते हैं सर, फास्फोरस को कम, ऐसे सर उनको मतलब इसलिए गवर्नमेंट ने उसके रिगार्डिंग सोइल हेल्थ कार्ड वो बनाने की कोशिश की थी। बट सर अभी अवेयरनेस थोड़ी कम है सर उसके रिगार्डिंग, बट सर वो भी काफ़ी फार्मर्स ने अडॉप्ट किया है सोइल हेल्थ कार्ड, तो वो पॉजिटिव। Have you heard anything called second green revolution in India? सेकेंड की रिवोल्यूशन ये सर क्या है सर उसमें जो कहाँ हो रहा है, how it is different from सर एक्चुअली हमारा जो हुआ था सर जो फर्स्ट की रिवोल्यूशन हुआ था उसमें सर व्हीट एंड राइस पे फोकस ज़्यादा था, तो सर अपार्ट फ्रॉम दीज क्रॉप्स सर सेकेंड रिवोल्यूशन में हम फोकस कर रहे हैं कि और क्रॉप्स सर अदर देन व्हीट एंड राइस उन पे ज़्यादा फोकस हो सके, सीरियल्स वगैरह या ये जो भी जिनमें सर वाटर कंजम्पशन कम होती है उन क्रॉप्स पे फोकस करना चाहते हैं। और अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, फोर्थ रिवोल्यूशन। रॉबर्ट सर फोर्थ रिवोल्यूशन, फोर्थ रिवोल्यूशन फोर्थ। यस सर। सो व्हाट इज फोर्थ रिवोल्यूशन? सर fourth revolution regarding Internet of Things, like all these sir, they sir due to So internet. what was the first revolution? Sir first revolution was sir वो steam engine. Perhaps I think it's about steam engine. Are you sure? Sir I'm not sure about it. Next is as a Mewat. Yes. So do you know who is the founder of Mewat? Founder of Mewat. So since the economy is going in different way right now, there is a slowdown in the economy. Yes, sir. So do you know about the reasons? What are the reasons of slowdown of economy, and what should be the steps taken by government of India, or as a particularly as a government of Haryana, okay, to क्या कारण हो सकता है? What are the factors? सर स्लो डाउन के सर सबसे पहले कि यूएस और चाइना वॉर के कारण भी सर काफ़ी इम्पेक्ट पड़ा है वो वर्ल्ड Yes, किस टाइप war? war किस टाइप? किस टाइप का ये ट्रेड वॉर सर, ट्रेड वॉर बेसिकली सर वो वहाँ से टैरिफ वगैरह इम्पोज कर रहे थे वहाँ से यूएस, और उसने रेसिप्रोकेट किया चाइना ने भी सर, तो उसके कारण सर वो कमोडिटी की सप्लाई मार्केट में बंद हो गई वर्ल्ड लेवल पे, तो सर इंडिया में भी काफ़ी उसका इम्पैक्ट पड़ा है। नंबर 2 सर की एम्प्लॉयमेंट सर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट रेट अभी 8%, आई थिंक प्रोबेबली 8% सर, तो सर ड्यू टू मोर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो सर लोगों के पास पैसे नहीं है जिससे कि मार्केट वगैरह में खर्च कर सके, तो सर उससे भी मार्केट स्लो डाउन है सर। इन सर ऑटोमोबाइल सेक्टर दे स्लो डाउन, वेरी मच स्लो डाउन सर, बिकॉज सर ये कोऑपरेटिव बैंक्स एंड उनमें सर रुपए वगैरह कम। स्लो डाउन क्यों है? जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्लो डाउन है, you are saying that Real estate, manufacturing sector, every sector is slow down. Slow So down. why there is a slow down? Slow down क्यों है? Even our GDP growth has slipped. Sir, GDP sir, dedicated to sir some structural reforms undertaken by the government, like sir demonetization. Sir, it is showing result after 2 or 3 years, sir. But perhaps demonetization is the one factor behind this. And sir, second, the GST, sir. Though it was a very good effort by the government of India, but sir, there are some technical glitches in the implementation of GST. तो सर उसका भी कुछ इम्पैक्ट पड़ा है सर जीएसटी के रिगार्डिंग में, एंड परहैप्स आई थिंक दीस आर But you are towing the line which the opposition party is there. Is it माने your honest assessment or you feel some other factors are? actually Do you think that I have read in the newspaper regarding sir all these GST. Sir, actually it's a very good motive sir by the government, but sir implementation was not good. but GST should be a booster. Yes sir, Because you have already GST should be a booster. But I think it will show that after. Do you think that demand has been decreased? Do you think consumption Consumption sir, क्या कारण है? क्या रीजन क्या है? What is the reason? sir, so perhaps people are not aware. Say investment, सर जो प्राइवेट सेक्टर में सर इन्वेस्टमेंट पे कम फोकस है सर, और लोग
आफ्टर डिमोनेटाइजेशन सर लोग भी बैंकों में जो पैसा होता था वो सर अपने पास रखना पसंद करते हैं अदर देन इन्वेस्टिंग इन बैंक्स एंड ईटीसी सर, बिकॉज दे नो मतलब अनसर्टेनिटी इन द पॉलिसी, दैट्स व्हाई सर दे आर नॉट इन्वेस्टिंग दैट मनी इन बैंक्स. तो सर बैंक्स आर नॉट एबल टू गिव loans and all this stuff regarding NPA सर. कोई लिक्विडिटी प्रॉब्लम है बैंक में? यस सर, NPA प्रॉब्लम सर काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में. NPA क्या होता है? सर नॉन परफॉर्मिंग एसेट. हाउ डू यू? सर 90 डेज तक अगर इंटरेस्ट रेट अचीव मतलब इंटरेस्ट रेट बैंक को ना मिले तो सर वो मनी NPA के अंदर आ जाती है सर. स्ट्रेस्ड एसेट और NPA में क्या फर्क है? सर स्ट्रेस एसेट आई थिंक 12 मंथ तक अगर कोई एसेट NPA रहे तो उसे स्ट्रेस एसेट बोलते हैं. अगर NPA 12 मंथ तक रहे सर कंटिन्यूसली. तो दैट इज स्टैंडर्ड माने सब स्टैंडर्ड बोलते हैं उसको. तो क्लासिफिकेशन ऑफ NPA है. अच्छा, रिसेंटली RBI हैज इन द लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी दे हैव रिड्यूस्ड द रेपो रेट. यस. उसका क्या इम्प्लीकेशन है? सर रेपो रेट उसको क्यों रिड्यूस कर दिया? सर द रैशनल सर रेपो रेट कम करने से सर जो बैंकिंग होती है सर उनको RBI में अपनी मनी पार करनी पड़ती है. जितना भी रेपो रेट होता है अगर जैसे में पार करना पड़ता है. रेपो रेट हैज गॉट नथिंग. CRR क्या होता है? CRR में SLR में पार करना पड़ता है. CRR SLR में पार करना पड़ता है. इसमें तो लेंडिंग करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ये RBI lends to banks short term. तो how can it be on the behalf of government securities? So no issue, leave it. Sorry. So madam please. So you must have heard about this KMP. So what do you think? What will be the economic impact of this KMP? How is it going to improve the economic condition of Haryana, especially in this region? मैम पहले हमें मैम दिल्ली जाने के लिए सोहना गुरुग्राम एंड और आफ्टर दैट मैम वो गुरुग्राम से वहाँ पे सोनीपत तक पहुँचने के लिए हमको सर मैम 2.5 आवर्स लग जाते थे प्रोबेबली गुड़गांव से सोनीपत जाने के लिए. वो जाम भी काफ़ी रहता था, ट्रैफिक जाम वगैरह. बट आफ्टर KMP मैम बहुत ही गाड़ी वगैरह काफ़ी ट्रैफिक कम हुआ है और उससे ड्यू टू मतलब तो मैम इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उससे होगी मैम, क्योंकि लोगों का टाइम सेव हो रहा है जाने में. एंड इट विल बी मतलब टाइम सेव होगा तो मैम इट विल ब्रिंग इन इकोनॉमिक टर्म्स एज वेल. Recently आजकल चल रहा है ये like pollution in Delhi, like Parali. यस मैम. Especially Delhi, Punjab, the main centers. So what methods do you suggest to prevent that Parali burning? Is there an alternative ways of that, reducing that Parali burning? What government of Haryana? Because that is a What, great thing. if you are appointed in that field also, the what steps will you take for this Parali burning? मैम गवर्नमेंट ने हैप्पी सीडर मशीन्स दे मतलब उन्होंने फार्मर्स को इंसेंटिव प्रोवाइड किए हैं हैप्पी सीडर मशीन खरीदने के लिए. एंड मैम हरियाणा गवर्नमेंट ने भी एक स्कीम चलाई है उसमें 10% जो हैप्पी सीडर मशीन की कॉस्ट होगी वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी फार्मर्स को. But farmers are there literally very poor, they can't buy Afford that that. machine, they can't afford that. Only 10% is, I don't think that is sufficient for that farmers. Awareness generation can be a game changer मैम. जो like NGOs through NGOs मैम we can मतलब bring behavioral change among the farmers. एंड मैम गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पराली खरीदने के लिए भी कोई ऐसा मैम क्या कहते हैं अब जो पराली होती है उसको मैम एज अ फ्यूल वी कैन यूज एंड रिसाइकलिंग मस्ट मैम. पराली कैन बी यूज्ड इन वेरियस बायोफ्यूल्स एज वेल मैम. तो मैम गवर्नमेंट को इंसेंटिव प्रोवाइड करने चाहिए फार्मर्स को रिगार्डिंग दैट. दिस इज अ गुड आंसर यू हैव गिवन. लेकिन मेरे को बताइए जो मैडम जैसे बोला द अफोर्डेबिलिटी ऑफ द फार्मर्स जस्ट टू अफोर्ड दिस कॉस्टली मशीन एंड ऑल इट बिकम्स एन इशू. कैसे improve करेंगे affordability? अफोर्डेबिलिटी वो अपन नहीं कर सकते हैं, उनके उतना पैसा नहीं है. तो सर गवर्नमेंट को ही क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट के अपने एंड से फार्मर्स को इंसेंटिव ज़्यादा प्रोवाइड करने होंगे बिकॉज सर फार्मर्स ऑलरेडी उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है. तो सर गवर्नमेंट को ही आना पड़ेगा आगे और गवर्नमेंट को ही जो पराली होती है सर वो खुद ही खरीदनी पड़ेगी या जो भी है सर इंसेंटिव. हरियाणा में तुम्हारा जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये कहाँ तक सक्सेसफुल implement हुआ है? हाँ, especially in context व्हाट of इज योर Haryana. फ्रैंक असेसमेंट दीजिए माने योर ओन इंडिविजुअल असेसमेंट सर एज इट एक्चुअली ट्रांसलेटेड ऑन द ग्राउंड और ऐसे सर एज पर सेंस 2011 हरियाणा का सर सेक्स रेशियो 879 था. बट सर अभी रिपोर्ट्स आई थी 2 मंथ्स पहले तो 900 क्रॉस कर गया.
तो सर इसकी ग्रोथ मतलब इससे सेक्स रेशो इम्प्रूव तो हुआ है सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से। एंड सर जो हमारे मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट में सर सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशो है, उसमें 903 ऑलरेडी 2011 में था, वो भी इम्प्रूव होकर 907 हुआ है सर। एंड सर वो गवर्नमेंट ने इसमें काफ़ी स्कीम्स लॉन्च करी हैं, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अलावा आपकी बेटी आपका धन वो लॉन्च करी है गवर्नमेंट ने। उसमें सर 21,000 रुपीज़ एट द बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड इज गिवन टू द पेरेंट्स में, तो वो भी एक इंसेंटिव है। और सर और एक इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में सर जो भी पंचायत होगी अगर वो बैलेंस सेक्स रेशियो अचीव करती है तो सर उन पंचायत को 1 करोड़ का इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है हरियाणा गवर्नमेंट। तो सर उससे फ़ायदा हो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेवात में जो फिजिकल और जो सोशल मोबिलिटी वुमेन की फिर भी लो है, बहुत कम है। So, क्यों हो रहा है? ऑनर किलिंग भी बहुत हो रहा है, ऑनर किलिंग बहुत हो रहा है। So, क्यों हो रहा है सर? मतलब इतना सब कुछ हरियाणा गवर्नमेंट कर रही है बट फिर भी वुमेन एम्पावरमेंट या हम Social issues बहुत ज़्यादा है मेवात सोशल में। मोबिलिटी की बात करें वुमेन की तो मेवात तो एटीट्यूडनल चेंज कैसे लाओगे तुम्हारे लोगों में, ये करोगे? ऐसे अगर मान लीजिए यू विल बिकम एसडीएम, यू विल बी पोस्टेड एज एसडीएम इन मेवात, पर्टिकुलरली मेवात। सो आपको बोला जाए कि आपको वुमेन एम्पावरमेंट करना है, सो हाउ विल यू ठीक है कन्वर्ट इट टू अ ड्राइव सॉर्ट ऑफ थिंग? सर हरियाणा में सर एक विलेज है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ विलेज सर, उसमें क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड सर वो उसको सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड सर उसके कारण सर वहाँ पे बिहेवियर चेंज आया है लोगों में। एंड सर उससे उस गांव में सर जो पहले सेक्स रेशियो का पुअर था सर वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो सर मैं चाहूँगा कि वही पॉलिसी मैं अपने मेवात में भी लेके आऊँ कि सर सेलिब्रेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। नंबर 2 सर मैं गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं रिगार्डिंग ऑल दीज लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या समृद्धि योजना, ऑल दीज स्कीम्स सर मैं चाहूँगा कि लोगों में उसकी अवेयरनेस हो रिगार्डिंग दैट वो स्कीम सो दैट वी कैन इम्प्रूव द सेक्स रेशियो ऑफ गर्ल चाइल्ड। एंड सर अपार्ट फ्रॉम दीज सर हरियाणा में सर लिटरेसी हरियाणा में तो एज पर सही है बट सर मेवाड़ लिटरेसी सर बहुत ही कम है, इट अराउंड 56%। एंड अमॉन्ग दो सर उसमें भी सर गर्ल्स की 35% लिटरेसी रेट है। सर मैं चाहूँगा कि लिटरेसी बढ़ाई जाए, लिटरेसी इंक्रीज की जाए जिससे कि सर वुमेन में भी उसके कारण अवेयरनेस जनरेट हो। एंड सर हरियाणा सर नॉन फॉर द स्पोर्ट पर्सनालिटी साइना नेहवाल एंड ऑल दीज स्पोर्ट पर्सन हैव बीन फ्रॉम हरियाणा ओनली। इन ओलंपिक्स सर हरियाणा गर्ल्स हैव वॉन द गोल्ड मेडल्स एंड ब्रॉन्ज मेडल। तो सर मैं चाहूँगा कि वही उनको रोल मॉडल बना के अपने मेवात में लेके आऊँ तो सर वो लोगों को अवेयरनेस फैला सकें कि इवन गर्ल कैन अचीव एज मच एज Your this answer is quite appreciated. It's really impressive. अच्छा दिया. Next is one problem is with Mewat. There is concept Khanzada Rajput. वर्ड सर So Khanzada Rajputs. खानजादा राजपूत। So other thing is in Mewat there is a patriarchal mindset also. So the basic, do you think that basic reason is behind this lack of women empowerment is patriarchal mindset? Yes sir, this is one of the most basic reasons sir, patriarchal mindset. Sir like they think कि women should not go outside from their home for studies or for anything else sir. तो सर वो patriarchal mindset का ही Is it a legacy, your hangover of feudalistic hangover still? Feudal society था, feudal society था। क्या था आपका ये, what was the background आपके मेवाड़ में? The type of Feudalism. so the structural ये of the society क्या था? feudalistic society था और Landlords हुआ करते थे. landlord हुआ करते थे, क्या था? ऐसे था क्या पहले? Why this patriarchal ये? मेवात के बारे में एक बात और कही जाती है कि मेवात के मोस्टली जो मुस्लिम्स हैं they are converted Muslims. Yes sir. And you have chosen this history as an option. Yes. So who converted these Hindus into Muslims and why converted Hindus into Muslims? सर औरंगजेब के टाइम में सर दीन got converted into Muslims. So why these Muslims are not converted into right now? ऐसा क्यों नहीं होता कि सर उस टाइम में सर हमारे कंट्रीज लाइक सेकुलर सर नाउ सर सेकुलर है नेशन
तो सर उस टाइम में जो प्रोबेबल जो किंग होते थे सर वो अपनी मनमानी या जो भी है उस पे उसकी डिमांड पे सर वो करवा देते थे, बट सर नाउ इट्स नॉट पॉसिबल की कन्वर्ट करना। तो सर क्योंकि अब लोगों में अवेयरनेस है काफ़ी रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स वगैरह काफ़ी आ रखी हैं। Is there any fundamental radicalization in Vivad regarding religion? नो सर, Radicalism is not there. रेडिकलिज्म इज नॉट देयर सर। It's not there. Okay. So, yes, please. Can I ask one question to you? Have you ever introspected yourself? कभी introspection करते हो? Can you highlight your strength and weakness to me? और क्या strength है, weakness क्या है? ऐसे कुछ। सर स्ट्रेंथ सर एडवर्स जब एडवर्स कंडीशन होती है सर तो सर मतलब मैं खुद से फेस करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट हेल्प ऑफ अदर्स। तो एंड सर वीकनेस है कि सर मैं थोड़ा वो कभी इमोशनल हो जाता हूँ सर, कभी कभी Emotional person। So, in this services, there is a need of emotional intelligence. जिस सर इमोशनल। Emotional intelligence की जरूरत होती है। बेटा आपने ये जो डेप दिया है, in this डेप you have written a sequence or preferences, यस and in this डेप there is a last this preference is DSP. डीएसपी सर। ऐसे क्यों? So सर why this एक्चुअली is इट्स ओनली अबाउट माय हाइट सर, आई वाज नॉट मीटिंग द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया फॉर डीएसपी, दैट्स व्हाई आई रोट इट। As I don't fulfill those। Yes, sir, I don't fulfill the criteria of height, sir. It's actually 5'7". They're Yes, demanding. many. 5'7". In Haryana, they are demanding more. That is what we are wondering about. They want DSP। मैं ये सोच रहा कि DSP why Last option। Yes, sir. so So your Mewat, how is like demographically different from other districts? विवाद कैसे डिफरेंट है अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से? मैम मेवात में 90% पॉपुलेशन मुस्लिम है एंड ओनली 10% है हिंदूज। एंड मैम यहाँ पे सेक्स रेशो और फीमेल बहुत अच्छा है मैम, एंड अपार्ट मतलब और डिस्ट्रिक्ट की कंपेरिजन में। That's all. कभी कम्युनल राइट वगैरह होता है? Is it susceptible to communal rights? No, sir. 90%. Kami since 30 to 40 years, there is no communal rights. I mean, There is perfect harmony. yes, sir. Right now, sir, perfect harmony. Harmony है। So since 90% are Muslims and 10% are Hindus, so you are also Hindu from Yes, sir. Hindu community. Is there you are not feeling that there is a kind of domination from the Muslim on the part of Hindu? Muslim लोग dominate करते हैं कि नहीं करते? No, sir. No, sir. No domination. Sir, we are in harmony, sir. Uh-huh. Hindu Muslim live there in harmony. Okay. So other things are, one more question is why this Haryana is providing always or giving always excellent sportsmen? Why other states are not giving excellent sportsmen? Exactly. Only Haryana is giving Anything excellent. special? And anything special with the Haryana? हरियाणा और 90s। सर एक्चुअली हरियाणा में सर सेकंड हाईएस्ट नंबर पे जो मिल्क अवेलेबिलिटी सर वो बहुत ज़्यादा है हरियाणा में। वो इंडिया में से सेकंड नंबर पे मिल्क अवेलेबिलिटी बहुत First ज़्यादा number है। पे किस पे? गुजरात आई थिंक, गुजरात। Why not in Gujarat? Gujarat की sports person Mostly को there This is- this doesn't seem to be very logical। लॉजिकल, हाँ। So ऐसे तो गुजरात को होना चाहिए। हाँ। सर सेकंड रीजन ये भी है सर, हरियाणा में सर अकेडमी सर स्टेडियम बहुत सारे खुले हुए हैं इन कंपेरिजन टू गुजरात सर। यहाँ पे भिवानी में सर बॉक्सिंग अकेडमी, वहाँ से सर ये 4 वो लास्ट ईयर ओलंपिक्स में सर 4 और वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था, वो सारी भिवानी से ही थी सर। बॉक्सिंग अकेडमी भिवानी में एंड सर स्टेडियम्स भी सर 141 स्टेडियम्स। What is difference between this? The question is why most of the sports person are coming from Haryana? Is it not so? मतलब ये इस तरह से नहीं है कि this गुजरात में कौन this merchant community ज़्यादा है, their Traders, attitudinal difference कोई रीज़न नहीं है क्या? यहाँ मार्शल रेस है, जाट है, मार्शल रेस एक ठीक है, मार्शल रेस का एक अलग attitude They have different culture। different culture। So आपको लगता है ऐसा कुछ है? Sociological हाँ, sociological factor, reasons, हाँ। factors। सर ये भी है सर, वो जाट सर पॉपुलेशन ज़्यादा है हरियाणा में, तो सर वो थोड़े स्ट्रांग होते हैं वैसे भी, मेंटली फिजिकली वेरी स्ट्रांग। जाट इज also considered as martial race. मार्शल Martial race fighting spirit होती है. So To what extent this Jat factor has influenced the recent election? सर जाट फैक्टर्स काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था उन्होंने। कितना कैसे?
सर वो दुष्यंत चौटाला सर, ही हैज वॉन मोर सीट्स एट दिस टाइम, मतलब उन्होंने अभी पहली बार इलेक्शन लड़ा था, बट ही हैज एबल टू वन 10 सीट इन हरियाणा. तो सर probably he has got all the Jat votes from Haryana, I think. Do you feel that their demand is justified? They should be given a different status, obviously, and सर एक्चुअली जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, यानी फॉर इलेक्शन, सो उनका जो मैनिफेस्टो में जो भी था सर, दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड सर, बिकॉज सर पीपल हैव वोटेड ऑन दैट मैनिफेस्टो विच दे हैव सॉल्व टू द पीपल सर. तो सर उनकी भी डिमांड फुलफिल होनी चाहिए सर. So do you think this the collaboration government how it will work? Do you think Stable it will रहेगी? a stable government or it will satisfy the needs of the Haryana people? मैम कोलिशन गवर्नमेंट मैम एक फ़ायदा ये होता है कि लोगों की जो जैसे जाट कम्युनिटीज़ की वॉइस भी हर्ड होंगी अब इसमें, एंड जो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है उसकी तो हर्ड होंगी, बट मैम वो स्टेबिलिटी का थोड़ा इशू रहता है कि थोड़ा स्टेबिलिटी से डिक्रीज हो जाती है, एंड स्ट्रॉन्ग डिसीजंस जो गवर्नमेंट ले सकती थी मेजॉरिटी में वो नहीं ले सकती सर, अब वो थोड़ा इशू है. अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि जाट कम्युनिटी जो है, सो दे शुड गेट रिजर्वेशन और नॉट? रिजर्वेशन Personal opinion क्या है? पर्सनल ओपिनियन क्या है? रिजर्वेशन मिलना चाहिए. सर एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सर, दे हैव स्पोकन कि इकोनॉमिक कैटेगरी नॉट द basis on the which reservation can be given. But the Supreme Court has given EWS 10%. But sir, This government of India has amended the constitution. Sir, government of India has given, not the Supreme Court, sir. Not the Supreme Court. Very good. So, do you think that this 10% reservation is justified? So this is exceeding 50%. Sir, मतलब रिजर्वेशन सर मतलब और कम्युनिटीज़ को अगर इम्पैक्ट ना करता हो तो सर देन इट्स गुड सर, बिकॉज सर एज पर एक कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसमें सर कि जो EWS कैटेगरी है सर वो उनकी काफ़ी कम सोशल डेवलपमेंट हो पा रही थी, तो सर गवर्नमेंट ने उसी को देखते हुए सर उनको रिजर्वेशन देने की कोशिश करी. सर इवन हरियाणा सर EWS कैटेगरी देते हैं सर, उसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन फ्रॉम जनरल कैटेगरी उनको रिजर्वेशन दिया जाता है. तो सर वो अपने हरियाणा में भी है स्टार्ट, बट सर गवर्नमेंट ने ये स्कीम सर उसको देख के लॉन्च की थी सर, उसका क्या कहते हैं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सर रिजर्वेशन दिया गया था. So what does constitution? What is constitution? Sir, constitution is that body sir, according to which all the parliamentary proceedings are done on daily basis. मतलब like constitution defines the सर constitution से executive की power, legislature की power, judiciary की power सर वो decide करता है कि how much the power they can get. A bit electrical engineer है. So what is basic difference between electrical and electronics? सर इलेक्ट्रिकल सर इलेक्ट्रिकल में सर हाई करंट यूज होता है सर, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सर वर्क्स ऑन द लो करंट लाइक 5 एम्पेयर एंड 10 एम्पेयर, बट सर इलेक्ट्रिकल सर करंट मे बी गॉन टू हाई वैल्यू सर. दैट्स द बेसिक डिफरेंस. What is the difference between this discovery and innovation? Discovery innovation. So right now everyone is saying about innovation and innovation. India needs innovation. ठीक है. So what is difference between discovery and Sir, innovation? discovery, invention, innovation. तीनों में क्या difference है? सर इनोवेशन तो सर इनोवेशन सर किसी चीज़ को मॉडिफिकेशन करना, इनोवेट करना, या लाइक बट सर डिस्कवरी सर ऑलरेडी चीज़ प्रेजेंट है सर, हम उसको फाइंड आउट कर पा रहे हैं, दैट इज डिस्कवरी सर. And what is innovation? इनोवेशन सर मतलब मॉडिफिकेशन करके मतलब कोई न्यू प्रोडक्ट को बनाना, दैट इज इनोवेशन सर. मतलब दैट प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट है सर वो एग्जिस्ट नहीं करता, हम उसको एग्जिस्ट करवा रहे हैं, बट सर डिस्कवरी में सर वो एग्जिस्ट करता है, हम उसको फाइंड आउट कर पा रहे हैं. Everyone is saying innovation can resolve all the problems of economy and everything. So innovation कैसे क्या करेगा? innovation ऐसा क्या कर देगा? अभी मोदी साहब ने भी बोला है, मोदी जी ने भी बोला, साइंस, रिसर्च, इनोवेशन, these things can resolve the problems of India. And recently, ठीक है, we are promoting this innovation policy. We have added a chapter of innovation. We have created innovation council. We are always, our prime minister is always focusing on नीति आयोग सुना है? नीति आयोग. नीति आयोग उसमें
सर नीति आयोग ने भी एक इनोवेशन काउंसिल है उसमें, नीति आयोग में भी, तो सर उनका What is the full form of नीति? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, सो ये नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो देयर इज इंस्टीट्यूट और देयर इज आयोग। सो वेदर इट इज इंस्टीट्यूट और आयोग, आयोग सर। so why this is full form is National Institute of Transforming India? सर ये सर नीति आयोग के अंदर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं सर, लाइक जो रैंकिंग निकालते हैं सर, डेल्टा रैंकिंग्स, एंड सर ऑल दोज आई प्रोबेबली दैट वी अभी रिसेंटली Indian has got Nobel Prize for Economics. He must be aware. Economics. क्या माने what is the on which theme he has got this year? What is his what kind of theory he has performed? What he has given? He has given. What is his contribution? For His which he has contribution to the contributed? society. क्या है? सर उन्होंने किसके ऊपर हो? सर उन्होंने इकोनॉमिक्स को सर सोशल सिक्योरिटी के साथ उसका वो अटैच किया था। बेसिकली सर व्हाट ही डिड, सर देयर वाज एक गवर्नमेंट प्रोग्राम सर, जिसमें सर इंसेक्टिसाइड जो नेट्स होते हैं, तो सर उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने थे सर। कोई मलेरिया डेंगू वाज वेरी मच इन दैट पार्ट, तो सर कोई भी वहाँ पे मतलब वैक्सीनेशन प्रोग्राम था वहाँ पे, बट सर कोई भी वैक्सीन लेने के लिए कोई भी नहीं आ रहा था। उन्होंने इंसेंटिव प्रोवाइड, उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि जो भी वहाँ पे इम्यूनाइजेशन करवाने के लिए आएगा उसको शायद 5 किलोग्राम वीट या राइस वगैरह मिलेगा जो भी इम्यूनाइजेशन के लिए आएगा। तो सर आफ्टर दैट सर काफ़ी लोग वहाँ पे इम्यूनाइजेशन के लिए आए, तो सर उन्होंने सोशल सिक्योरिटी को सर एज ए इकोनॉमिक इंसेंटिव के तौर पे सर जोड़ा था सर उन्होंने, तो उससे सर काफ़ी डेवलपमेंट हुई थी। He has introduced a new educational system in some parts of India, like Bombay, Gujarat. क्या है? So I think data, I'm not able to recollect that, मतलब computational data or like probably. He has also contributed with the party a scheme. Which scheme? He has given a scheme also for the economic development of the country. So he has participated and given ideas. Sorry. So next is RCEP. Yes sir. What is RCEP? So Regional Comprehensive Economic Partnership. So what do you think about why this Prime Minister never signed, not signed over? Why he has not signed on it? सर एग्रीकल्चर फार्मर्स का इशू था कि सर दे आर सम कंट्रीज सर जहाँ से इंपोर्ट बहुत हो जाएगा, एंड कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के भी रिगार्डिंग सर चाइना इशू आते हैं। चाइना सर काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट वगैरह को कल्टीवेट आ सकता है इससे, एंड सर दीज टू इशूज वर देयर सर, एग्रीकल्चर एंड दीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना। Not signing this year, what way it will impact On Indian economy. So Not actually not being a party to this? Yes. sir, there was FTA signed by our country, sir, during 10-year period, sir, जो trade deficit था वो probably 10 times बढ़ गया था after FTA sir. I'm not able to remember from where, but sir, there was an estimation that if we allow the RCEP free trade, then sir that trade deficit will increase sir. Due to China issue and Australia and New Zealand sir, Australia was so thinking that Australia का sugar product है, sugar and all these wheat, वो सर वो इंडिया में डंप कर सकते थे सर, बट सर दैट विल रिड्यूस सर, सो सर इट विल मतलब इसका सही इम्पैक्ट होगा भी इंडिया पे, बट सर एक्चुअली कंपटीशन सर हमारा डोमेस्टिक इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम है? सर डोमेस्टिकली सर वो फार्मर्स मतलब उनको दिक्कत नहीं आएगी सर, वो पहले जो डंप हो जाता था। Are you sure? यस सर, फार्मर्स इसी कारण ही गवर्नमेंट It is only a farmers issue or any other issue? How भी कुछ impact हो सकता है? इंडस्ट्रियल सर प्रोडक्ट सर चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट सर वो थोड़ा अब सही होगा, चाइना डंप करता था। One question from my side. I think it will be last. I will not ask after that. You are an electrical engineer. Your background is here, and you are a product of NIT, na? Yes sir, NIT sir. Okay, sir.
So now you could have been a very good entrepreneur. Why you go for this? So, Sir, actually, government service. during my electrical engineering, I was not able to get that kind of interest in electrical engineering. I could not get campus placement there as well. Okay. So, sir, I thought, matlab, I cannot do good in electrical engineering. That's why I opt for this UPSC, sir. Civil services. I started. So you started with- Why not private sector? Sir, actually, I applied for 1 or 2 companies, but I could not get placement there. So, sir, then I started preparing for UPSC. So as an HSS executive, what will be innovative ideas like? अब क्या है Your own innovative ideas. जो आपका अपना ओरिजिनल हो कि आप आप हरियाणा किस को फील्ड change में करें। हरियाणा के इस फील्ड में आप क्या चेंज करना चाहोगे? Like this is lacking something here and I want to You want to improve bring that. a transformation in Haryana, major ये तो what will be? मैम एक्चुअली मेरे डिस्ट्रिक्ट में मैम अनएम्प्लॉयमेंट वो इलिटरेसी पर्टिकुलर बेटा आपके डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। He is You are talking about talking You Haryana. will be Haryana. appointed somewhere else where the You are activity in- rate is very high. So what will you do in that? She is talking of Haryana देखो. सर वो हरियाणा में मैम सेक्स रेशियो का इशू बहुत ज़्यादा है हम्म। तो सर मैं अवेयरनेस लाना चाहूँगा मैम जिससे कि सेक्स रेशियो हरियाणा का इम्प्रूव हो सके दैट विल माई मेजर फोकस एंड मैम अपार्ट फ्रॉम दिस मैम एजुकेशन हरियाणा में जो so- यूनिवर्सिटीज़ हैं Okay. मैम उनका सिलेबस वगैरह इन माई NIT कुरुक्षेत्र इवन सिलेबस वगैरह मैम 20-30 ईयर से स्टार्टिंग है तो सर मैं चाहूँगा कि लाइक इनोवेशन वी आर फोकसिंग इनोवेशन तो सर हमको सिलेबस भी चेंज करना होगा एज अकॉर्डिंग Curriculum change What करना about the primary level? मैम in प्राइमरी education? यस मैम इन प्राइमरी लेवल मैम इवन इन माई डिस्ट्रिक्ट मैम 20% स्टूडेंट्स 20% चाइल्ड आर नॉट एबल टू गेट प्राइमरी एजुकेशन में तो ऑन एवरेज हरियाणा में भी मैम प्राइमरी एजुकेशन फोकस कम दिया जाता है वी आर फोकसिंग मोर ऑन हायर एजुकेशन तो मैम मैं चाहूँगा कि प्राइमरी एजुकेशन में भी फोकस किया जाए तो मैम इंसेंटिव जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है लाइक मिड डे मील तो मैम उनमें काफ़ी ज़्यादा लोगों तक वो बच्चों तक पहुँच नहीं पा रहा है मैम तो मैं चाहूँगा कि उसकी स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन हो मिड डे मील स्कीम वगैरह की जिससे कि बच्चे इंसेंटिव को इंसेंटिव मिले वो स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा है एजुकेशन एंड सेक्सेशन में आई विल लाइक टू फोकस ऑन दीज 2 areas. So is there any plan to improve the government schools, education in the government school or the private sector? So especially in the government schools, so there is a lot of chances of improvement. Ma'am, in government school, I think there is a lot of chances of improvement because ma'am गवर्नमेंट में टीचर एब्सेंटिज्म बहुत ज़्यादा है सर तो मैं चाहूँगा कि टीचर एब्सेंटिज्म That को is basically in Mewat district, Is not the Mewat- rest of the district. I know in Mewat the absenteeism is very high. even ma'am my father is headmaster ma'am in government school Okay. तो मैम I have seen all the problems ma'am from the ground level in Mewat तो मैम Yes. वहाँ पे एब्सेंटिज्म मैम बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा है. तो मैम जो गवर्नमेंट ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस स्टार्ट करवाया बट सर वो स्टार्ट तो हुआ है बट उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पा रहा है ऑल द बायोमेट्रिक जो मशीन है Actually, biometry is not the only solution. Once you go at 8 o'clock and you just put the thumbprint, and after that you just came outside, and then again you go to the 2:30 and put again the biometry. So a constant watchover is must. मैम एक्चुअली इफ आई गेट SDM एग्जीक्यूटिव पोस्ट मैम तो जो चेकिंग रेगुलर इंस्पेक्शंस में आई विल ट्राई टू मेक रेगुलर इंस्पेक्शंस इन दोज प्राइमरी स्कूल्स सो दैट कि टीचर एब्सेंटिज्म कम हो सके मैम Give me a very strong reason, यस सर strength of yours. Why you should select you? Why should you should be selected? Selected. Give a strength. You tell me just how you are different from your counterparts. सर सर मैं एक्चुअली पेरेंट्स मेरे बैकग्राउंड सर एजुकेशन से ही मैं आया हूँ और सर मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन को ओवरऑल कर सकूँ सर इवन सर मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट और फॉर द होल ऑफ द हरियाणा सर मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन इम्प्रूव हो And may you couldn't get my question. There is some gap. Give me one of your major strengths, your individual strengths for which you feel that you deserve to be this. The commission should think yes. आप you इसमें select होना deserve this. चाहिए आपको. मेरे को बताइए. Correct. बढ़िया कोई सर एक्चुअली मैं strong point. सर जो मैं जो सोचता हूँ सर कोशिश करता हूँ कि इसे इम्प्लीमेंट कर सकूँ सर मेरा जो थॉट प्रोसेस सर वो है कि मैं एजुकेशन को एक फील्ड मान के सर उसमें जितना हो सके मैं करना चाहता हूँ इम्प्रूवमेंट तो सर मेरी जो क्या कहते हैं इनोवेटिव आइडियाज़ को भी लेकर आना चाहूँगा मैं एंड सर देयर इज अनदर इशू सर रिन्यूएबल एनर्जी इशू सर इन हरियाणा सर लाइक
we are focusing more on conventional source of energy like coal and all these. As sir, I am electrical engineer. I know how to produce. I know the solar modules, like how we can generate solar energy, wind energy सर. तो मैं चाहूँगा कि उस फील्ड में भी मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ, जिससे कि मेरा टेक्निकल नॉलेज भी सर इन एडमिनिस्ट्रेशन यूज हो सके सर. तो सर प्रोबेबल दैट माइट बी रीजन जिससे कि मैं उस लाइक. So one last question is that in Haryana there is a problem of groundwater. That issue Groundwater of depletion. groundwater depletion. So what could be the possible solution to resolve this issue, और कैसे ठीक हो सकता है ग्राउंड वाटर? सर ग्राउंड वाटर बेसिकली सर वो एक्सप्लोरेशन ऑफ वाटर ड्यू टू इरिगेशन. हम सर वीट और एंड राइस पे फोकस करते हैं. सर वो क्रॉप सर काफ़ी वाटर कंजप्शन करती हैं सर. तो सर हमको एज द सोइल कंडीशन डिमांड सर एग्रो क्लाइमेटिक क्रॉप सर जो होती है वहाँ की क्लाइमेट के हिसाब से सोइल के अकॉर्डिंग हरियाणा के लिए कौन सी क्रॉप्स सूट करती हैं? सर जो सर मेरी डिस्ट्रिक्ट है सर वहाँ पे एग्री वीट एंड राइस सर वो सूटेबल नहीं है. बट सर फिर भी लोग क्योंकि MSP गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके कारण सर लोग वहाँ पे ज़्यादा ग्रो करते हैं. तो सर जो ये बाकी जो नॉन वाटर कंजम्पशन क्रॉप्स होती हैं सर मैं चाहूँगा कि वो वहाँ पे हो. कैसे लाइक जैसे जिसमें लेस वाटर लगता है, लेस वाटर कंजम्पशन, जिसमें लेस वाटर चाहिए आपको. सर जो ये बाजरा सर और ऑल दीज सर क्रॉप्स. but your soil is congenial for the growing of bajra and all this. बजरा होता है वहाँ? ये सर बाजरा होता है. मेवात एज ए डिस्ट्रिक्ट, आप क्योंकि मेवात से ही बिलोंग करते हैं, बहुत बारी मेवात बोला भी है आपने. मेवात में अगर हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री आपका एक ऑप्शन रहा है, सो मेवात में किस किंगडम का रूल रहा है पास में? सर मेवात में हसन खान मेवाती सर उनका भी रूल रहा है वहाँ पे. इनिशियली एंशिएंट टाइम की अगर हम बात करें, सो जैसे आपने मगध एम्पायर सुना होगा, मत्स्य एम्पायर सुना होगा, ठीक है, ये अवंतिका सुना होगा, ये सब सुना होगा. तो कौन सा एम्पायर था मेवात? किंगडम कौन सा था एंशिएंट टाइम? ठीक है. सो ओके, सो वी चलो ऑल द बेस्ट. All the best. चलो एक चीज योर मैंने फॉर्मल इंटरव्यू जो हुआ, हाउ डू इवैल्यूएट योरसेल्फ आफ्टर इंटरव्यू? तुम्हारा अपना इंटरव्यू, तुम्हारे बारे में, तुम्हारा परफॉर्मेंस के बारे में, व्हाट इज योर ओन सेल्फ इवैल्यूएशन? सर वो आप क्या सोचते हैं? सर वो मेवात के बारे में नॉलेज काफी डेवलप होना चाहिए. और सर और सर एनालिटिकल क्वेश्चन सर मैं जवाब नहीं दे पाया. एनालिटिकल क्वेश्चन का सर लाइक आरकेप का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इन बेटर वे सर मैं बता नहीं पाया. तो सर वो आई थिंक थोड़ा सा आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स चलिए बट ओवरऑल इट इज देयर इज नो लाइक शायद मतलब पीसीएस जो होता है, थोड़ा सा पीसीएस का जो इंटरव्यू होता है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा डिमांड करते हैं. वो डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे हु इज द फाउंडर ऑफ मेवात. सो शुड बी मोर IAS कम जाए तो तुम थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा ये करो. So IAS and PCS, there is a difference. In IAS they will focus on the analytical things. हाँ, But totally in different. PCS यहाँ totally different होता है. तुम्हारा रीजनल फैक्टर